today? There Yes. are more students to join, I think. Hello? Yes, actually, we have 104 students in our Cost Innovation Camp. So let's wait for 5 minutes then. Okay. अगर 5 मिनट देखते हैं, अभी 11:05 हुआ है ना, और 5 मिनट वेट करते हैं, जो आए ठीक है, नहीं तो फिर शुरू करें. Okay. Can we start? Yeah. Just Yes. 1 minute more. Okay.
Let's start. Yeah, Manisha ma'am, you can start it. Okay. First of all, very good morning, Advait sir, and hello everyone. Welcome to today's session. This is our second master class of first innovation camp, front-end web design. I hope everyone has completed week 5 course. So now I would like to introduce today's presenter, Mr. Advait Rao. He has 13 years of experience in IT field. Currently, he is running his own IT company, Rudram Solution, and his expertise in full stack web, Android, and software development. So most welcome, Mr. Advait Rao, sir. And students will ask question one by one to you, and please you will solve their queries. The student, you can also write your question in chat box. You all ask one by one question, and Advait sir will answer you, right? So sir, please let's start. Sir. Manisha ji, can we just start with the lecture first, then after that the question answer section we'll keep it in last. Yeah. Okay, thank you, sir. So yeah, hello everyone. I would love to know everyone, so please start your cameras if you can, because I really hate to talk to screen. Great. So let's start with very basic. Tell me more about HTML. What you know about HTML? You can write it in text like chat box, because communication will be better in there. What is HTML? Okay, hypertext markup language. What does that mean? Basically, HTML is a language. It's like a printout thing, like whatever we want our screen to be like, it's the layout. Okay, is it a programming language? Yeah, we could say that. Not a programming language. It's not a programming language. It's a sort of something what we want a screen to look like. That's it. Okay. So basically it is a markup language. We usually use it to design a document like HTML page. That's why you don't need any kind of server to run HTML. If you just create one particular HTML file and you just click on it, it will be visible in your browser, right? Okay. Now, next question. Where do you use HTML? Yes, it's right down. I'm okay in web development, in web design. Great. Web page design. Okay, great. So as far as I know, and Rahul sir told me that you're already learning the HTML and all the website basics. Am I correct? Can anyone tell me that where are you right now? Like, okay, web page design, front-end web design, VS Code, okay. Hello. Yes, Yogesh. Sir, I'm also use HTML as a JSX in React. Great. Okay. So we can say in whole web development, HTML is just a basic, the base, we can say. For each and every language, you need basic HTML. So it is a markup language, but it is very important language to learn, because if you know the tags, then only you can go ahead with other development languages. Is that correct? Okay. So let's start with basic. Do you know the structure of HTML?
Okay. So, am I co-host, sir? Can I just share my screen? Yeah, you can share. Not problem. Logically, if you can see, this is basic structure of HTML. Here's a document, HTML, then HTML tag, head, title, head, body, and inside the body, there are some elements. Correct? So this is very basic HTML structure. So one by one, can we just revise if you know what is head tag? Student, you can use your mic too if you want to Yeah, you answer. can use your instead of mic the- as well. You can use chat box as well. I'm reading as well. I'm listening as well. So you can. So inside head tag, we write down the style as well as script. Okay. And so basically, head is nothing but to tell the browser that what this particular page is all about. So this is a title tag. Yeah, basically no heading. It is not a heading. Heading is a different thing. This is heading. Okay. So inside this head, we wrote this title. So let's just run this particular code. Oh. Can you see this? This is basically a basic HTML code. Here, the title goes here, if you can see, in my browser's title. Now, logically, this is my first heading, this is my second heading, this is my third heading, fourth, fifth, and this is paragraph. These are all things you can see here. The H1, H2, H3, H4, H5, and paragraph. So, can you tell me more that what you know more about HTML, like what body tag does this particular thing does? Sir, whatever we write inside the body tag, the whole thing display on web page. Okay, whatever we write. This Oh. body tag basically tell us what content should be there in our HTML document, which should be displayed in the browser, or we could call it server. Correct. Okay. So basically, we just create one simple document with this only. Okay. So I'll use this H1 as the main heading of my particular document. This is the document heading. My text editor is visible, right? Okay. Now this particular H4, we will use it as a subheading. Correct? And here, I'll just use it as a paragraph. So this is my simple document with heading and everything. Okay. Now, if you can see, this is not so like I won't call it ugly, but it's not so good looking, isn't it? Like that this particular tag is looking bold and everything. Yeah, very simple, but not so like good looking or something. So to make it good looking, what we use? CSS. Okay, and what is CSS?
Sir, CSS stands for Cascading style sheet. It is used to When I design web ask the pages. question, don't give me the long form. I know long form. I just wanted to know that how it works and what it is. So it is used to style pages, web pages. Okay, and Basically, whatever we write in the HTML form, as you told us that it is all the layout thing. So CSS is something which gives them a font or the color or what decorating thing, how we have to lift it, where we have to keep it. oh, great. These all contained in the CSS part. So we'll go there, but we'll start with the simple things now. First thing is structure, right? The structure of this particular structure, we all know that how HTML works. For anything, you can do this. Without these tags as well, this particular page will work. But to make it more visible, to document, make more readable, you need to do this. And you write all those things like browser will know that this is HTML page. Then browser will know that this is title. That's why you need to like write this, that's it. So let's go to first part, that is your formatting. So we go there. If you can see, these are the formatting of text. Basically, to make it bold, you can use strong as well as B. If you want italic, then you can use I, and many more like emphasis text and marking text, then small text, deleted text, instead subtext, and everything. You can see it here. Okay. If you are seeing it, it is on one single text. Now, inside this text, we can see it one after another, but inside browser, it is in one line. Can you tell me why is it so? Basically, there's no difference between bold and strong tag, Ronali. They both are same. Okay, yeah. अगर हिंदी में भी कंफर्टेबल हो, यू कैन आस्क. हिंदी इंग्लिश हम कंटिन्यू हिंदी इंग्लिश में ही करेंगे, बेटर रहेगा. Is that okay, Rahul ji? Yeah, yes, sir. It will be better. Okay. Okay. So you can ask in हिंदी. आप हिंदी में भी पूछ सकते हो. मराठीत विचारायचं, मराठीतही विचारू शकता. इन एनी लैंग्वेज. अगर मुझे आती होगी तो जरूर मैं उसमें भी बात करूंगा, कोई बात नहीं. ओके. सो बेसिकली ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं है. वेरी नाइस नितिन. सो विल पुट अ ब्रेक. हाउ टू पुट दैट? Can anyone tell me? Sir, these are all Yes. inline elements. Yeah, these all are inline element right now. This is one page, no? Right now we created one single page where no CSS is associated. So can anyone tell me how to break this particular text into the different? Sir, inside angular bracket, we write down BR tag. Great. Okay. So for everything, you need to do this, correct? Okay, so this is all about the formatting. So someone asked recently, किसी ने पूछा था कि what is the difference between strong and bold? So this is strong and bold, both are same things. Then this is italic, this is emphasis, this is marked text. If you can see, book के अंदर हम mark करके रखते हैं ना, that thing. So if you want to write some document और उसके अंदर कुछ mark करके रखना है, तो you can use this particular thing. Then small text. This way.
So this is all about formatting. Okay, now we'll go further with the quotations. Now there's one particular thing called block quote and one other particular thing called queue. So everyone know what is quotation, right? सबको quotation तो पता है क्या होता है. This thing we call Yes, quotation. sir. Okay. So inside block quote, what we do, कि इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर अगर मुझे कुछ दिखाना है, कुछ कोट करना है, तो मैं यूज करूंगा ब्लॉक कोट. और अगर मुझे सिंपल कोड देना है किसी को, तो मैं यूज करूंगा क्यू. ओके, लेट्स जस्ट सी हाउ इट विल. सो आपके ब्राउजर के ऊपर ये कुछ इस तरह से दिखता है. This particular block code, inside this you can see this, and ये simple code है. Okay, so logical अगर आप यहां तक देखोगे तो ये बहुत बोरिंग होगा, क्योंकि हम एक सिंपल डॉक्यूमेंट को रन करते जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ डालते जा रहे हैं. इट जस्ट ब्लैक टेक्स्ट और ये सारी चीजें हम करते जा रहे हैं. सो लेट्स just start with the styles or CSS. So can anyone tell me how we use style, basically style sheet or any kind of style? Sir, we use 3 styles: inline, Okay, external, and Internal, external. okay. The highlighted thing is, can you see my Internal, sir. text edit, right? In- Okay, this is Internal, inline. Inline. Internal. Okay, Internal, sir. okay. Now, what is this? It is used to link style page to our HTML document. Okay, I'll do one more thing. What is this? Inline CSS. Inline. Okay. So why do we use this thing when we can use it inline? हम ये styles.css को बाहर से क्यों इसके अंदर इंसर्ट करते हैं when we can use this thing in your page? We can use style.css for that same style document for multiple HTML pages. Okay, and We can make the class in that, so we can use that class to multiple elements. okay, ठीक है. So basically अगर मैं ये styles के अंदर भी डालता हूं तो भी ये काम करेगा, करेक्ट? मैं इसे styles.css के अंदर अगर डालता हूं और यहाँ पे मैंने वो स्टाइल शीट ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, तो मैं यहाँ पे यूज कर पाऊंगा उसे, करेक्ट? सो इसका रीजन और एक ये भी है, ये सारे आंसर्स तो बहुत सही है कि उसको एक क्लास के अंदर है, उसको हम इनहेरिट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर, की 2-3 HTML पेजेस के अंदर हम एक सिंगल CSS को इंपोर्ट कर पाएंगे. बट इसका एक और भी रीजन है, दैट दिस वोंट लुक गुड व्हेन यू गो इन मार्केट, व्हेन यू आर गिविंग. अभी मैं as being मैडम ने बताया कि 13+ मेरा एक्सपीरियंस है. From 11 years I'm running my own company called Rudram Solutions. So when you give this thing to your client, कभी आप HTML का कोड या कोई भी वेबसाइट किसी क्लाइंट को देते हो, तो वो कोड इंस्पेक्ट के अंदर दिखता है, भले भी आप सामने उसको देख ना पाए. जैसे मैं अगर इसको निकाल दूं और इस कोड को देखूं, इस कोड को अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ,
तो ये भले यहाँ पे पता ना चले, बट व्हेन यू इंस्पेक्ट इट तो आपके सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखते हैं इन डेवलपर्स पैनल। और यहाँ पे दिखते वक्त अगर मैं यहाँ पे स्टाइल्स डालता हूँ हेड के अंदर, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है ऑन बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल। सो कोडिंग का एक सबसे पहला रूल यही है कि वो जितना सामने दिखने में अच्छा हो उतना ही आपके कोडिंग के पेज के ऊपर दिखने के लिए अच्छा होना चाहिए, तो ही आप कुछ अच्छा उसके अंदर कर पाओगे। ठीक है, इसलिए भी हम लोग CSS का यूज करते हैं, एक्सटर्नली हम कुछ चीजें करते हैं। नाउ किसी ने बताया था कि क्लास को हम डिजाइन कर सकते हैं, सो कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज क्लास? Sir, we Selector can is a write. class. Sir, we can write the CSS in class, and we can give that class to multiple elements. Okay, and for it, how do you yeah. give class to particular element? जैसे मुझे इस H1 को एक क्लास असाइन करना है, मैं किस तरह से करूंगा? Sir, A H1 class is class. equal to. Okay, class is equal to, if मेरे क्लास का नाम रैंडम है, RANDOM, In brackets, in double quote. double quote, Yeah, class name. I'll put random, correct? मुझे इस पूरे क्लास को एक बैकग्राउंड देना है, तो मैं स्टाइल शीट के अंदर इस पर्टिकुलर को क्या करूंगा? Dot random. Okay, why dot and why not hash? Sir, hash Because represent ID. Okay, correct. Hash ID के लिए यूज होता है सर। Hash is used for ID. Correct. अभी बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करूंगा? Background color. Background color. Okay, what if I do this? It will Not also bar. work, sir. Correct. So this both will work, this as well as this. Let's see. Now inside this style we'll create one particular. अभी अगर ID और क्लास दोनों को हम यहाँ पे कुछ स्टाइल दे सकते हैं, तो हम हर जगह ID क्यों नहीं यूज करते, क्लास क्यों यूज करते, कोई बता सकता है? सर क्योंकि क्लास हम लोग एक मतलब एक क्लास ID यूनिक होती है और ID को सिर्फ एक ही एलिमेंट पे टारगेट कर सकते हैं, एक ही टैग पे। ओके, मैं दो चीजों को ID नहीं दे सकता। Sir, we cannot give same ID. पर सेम ID नहीं दे सकते। Okay, so we can give एक ही क्लास टू ऑल दो थिंग, राइट? किसी एक पर्टिकुलर क्लास में सबको दे सकता हूँ। यस सर। ओके, ये हो गया क्लास के लिए। अभी सेम वे अगर मुझे आईडी के लिए करना है तो आई जस्ट टाइप हैश। नाउ मुझे एक लिंक के लिए सिर्फ अगर करना है, स्पेसिफिक लिंक के लिए मुझे देना है, तो मैं किस तरह से करूंगा? मुझे ना तो आईडी यूज करना है ना तो क्लास, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सेलेक्टर। ओके, और वो कैसे करेंगे? टैग का नाम। ओके, एंड जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो। ओके, और इसको हम कलर देंगे। तो इस हिसाब से जो भी टैग, जैसे ये ए है मतलब लिंक है, इसके अंदर हम बटन कर सकते हैं, इसके अंदर हम टेबल कर सकते हैं, इसके अंदर हम जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उसको हम पर्टिकुलर कलर दे सकते हैं, करेक्ट? यस। नाउ
will go to this particular list. अभी लिस्ट के दो टाइप्स हैं जो आपके सामने हैं, कोई बता सकता है? Ordered list, unordered list. What is ordered and what is unordered? And what it will output? इसका आउटपुट क्या आ सकता है? सर ऑर्डर लिस्ट में 1 2 हमें 3 नंबर जनरेट होता है सर 1 2 3, और अनऑर्डर लिस्ट में Okay. हमें सिंबल जनरेट होते हैं। हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा सिंबल देना है, हम स्क्वायर दे सकते हैं, सर्कल, दे सकते हैं। डिस्क, स्क्वायर। ओके ग्रेट। अभी मुझे एक स्पेसिफिक पूरी लिस्ट को मुझे अगर स्टाइल देना है तो मैं कर सकता हूँ? यस यस सर, मुझे इस पूरी स्टाइल को मुझे बैकग्राउंड देना है तो मैं क्या करूंगा? यूएल टैग को में यूज स्टाइल करेंगे। टैग के बिना, अगर मुझे यहाँ पे करना है पेज के ऊपर। यस, इनलाइन सीएसएस। ओके, सो मुझे इसे बैकग्राउंड देना है ब्लू कलर का। तो ये बैकग्राउंड खाली पहले वाले को आएगा कि पूरे इसको आएगा? पूरे इसको सभी आएगा को आ सर। जाएगा सर। ओके, अगर मैं यही चीज यहाँ करता हूँ तो सिर्फ इसको आएगा, कॉफी को। ओके, लेट्स सी। आया? कोई बता सकता है क्यों नहीं आया? सॉरी, नहीं आया। तो बैकग्राउंड कलर यूज करके देखिए। ये क्यों नहीं आया? सर मे बी इसके पास कोई विथ नहीं है। ओके, लेट्स ट्राई विद बैकग्राउंड कलर। Because background works for the particular div or else the particular element which have element inside it. So एक पूरे के पूरे एलिमेंट के लिए वो यूज होगा, एक सिंगल लिस्ट के लिए या तो फिर एक सिंगल पर्टिकुलर थिंग के लिए वो यूज नहीं हो सकता। That's the difference between background color and background. Got it? Now let's go further. Styles and HTML मेरे ख्याल से आपका काफी हद तक अच्छा है। Let's go to the next level, that is JavaScript. तो JavaScript क्या है, कोई बता सकता है? To give functionality to our website. Java is a scripting language. Okay. JavaScript is a programming language, so we can develop the logic of our page. Okay, what kind of logic we can design on it? Suppose I want to click some buttons, so I want to render some pages, and I want to do some functionality with the help of scripting, so we can use JavaScript. Okay, ये सारी चीजें हम HTML में नहीं कर सकते? Yeah sir, we can do also in that, but JavaScript is more beneficial. So okay, HTML के अंदर हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं? no sir. Okay, so markup language is just to design documents. इसलिए HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते किसी भी तरह की। That's why मैं जब I'll show you. यही रीजन है कि मैं जब इस फोल्डर के अंदर किसी भी फाइल पर क्लिक करता हूँ HTML की, तो वो सीधा मुझे ब्राउजर के अंदर खोल देता है। बट अगर यही फाइल स्पेसिफिकली किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, जैसे कि आपका PHP है या फिर एनी अदर ASP है, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है, तो वो लैंग्वेजेस मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं खोल सकता ब्राउजर के अंदर। उसके लिए मुझे एक इंटरनल सर्वर लगेगा। ओके, बट JavaScript is a client side language. Now, can you tell me the difference between client side and server side? Do anyone know? server side language, so we can use in backend side, and client side language we can use the style of our we can use the function of our pages. Okay, when you say backend, तो backend मतलब
Backend, it means, sir, It's two-way communication, sir. Logically, we can call it server, right? yeah. The complete server, जहाँ पे आपका डेटाबेस है, आपकी ये सारी फाइल्स रखी हुई है, वहां पे ये ऑपरेशंस होगा. And on client side, they are on page operations. किसी पेज के ऊपर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा ये कंट्रोल नहीं रहता है कि सामने वाला आदमी क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, या मैं वो देख नहीं पाऊंगा. अगर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर 2+2 का ऑप्शन देता हूँ उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर और 2 इनपुट बॉक्स देता हूँ, तो पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स ऑन क्लाइंट साइड तो काम करेंगे, बट जब ये सारी चीजें हम सर्वर साइड के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो डिजिट्स उस पर्टिकुलर आदमी ने क्या डाले थे. सो इसके लिए होती है सर्वर लैंग्वेजेस, दैट इज PHP, ASP. सो PHP के अंदर सारे जो सर्वर साइड के ऑपरेशंस है, जैसे अगर मैं कुछ पर्टिकुलर चीजें डालता हूं और वो पर्टिकुलर चीजें डालने के बाद में मुझे सारा आउटपुट मेरे सर्वर पर आना चाहिए, उसके लिए मैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस यूज करता हूं. अब जब मैं कह रहा हूं कि सर्वर साइड लैंग्वेज, दैट मीन्स जब PHP यूज करते हैं या तो ASP भी यूज करते हैं, तो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का भी यूज होता है. ऐसा क्यों कि जब कोई सर्वर साइड लैंग्वेज के अंदर मैं कुछ डेवलपमेंट कर रहा हूं, फिर भी मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूं? कोई बता सकता है? ओके. सो रीजन ये है क्योंकि ये सारी जो लैंग्वेजेस है, जैसे PHP हो गया या तो फिर ASP.NET हो गया, इनको ऑन पेज ऑपरेशंस की कोई फैसिलिटी नहीं होती. इस पर्टिकुलर पेज के लिए अगर मुझे एक फॉर्म सबमिट करना है तो वो फॉर्म लोड होता है. अगर आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई PHP वेबसाइट है या ASP.NET वेबसाइट है, उसके अंदर अगर आप बेसिकली कुछ चीजें डालते हो, जैसे इनपुट या तो जो भी चीजें अगर उनके अंदर डालते हो और सबमिट का बटन क्लिक करते हो, तो वो उसी पेज पे होता है, पेज रिफ्रेश होता है? पेज रिफ्रेश होता है. पेज रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है क्योंकि साथ. रिफ्रेश के बाद में अगर ये मेरा HTML पेज है, तो इस HTML पेज के ऊपर मेरा PHP कोड लिखा होता है कि मेरा एक फॉर्म भरने के बाद में वो फॉर्म के अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, वो रीड करने के लिए उस पेज को रिफ्रेश होना ही पड़ता है. अभी उसके लिए ऑब्वियसली कुछ ज्यादा करने के लिए या फिर एक सिंगल पेज के ऊपर कुछ चीजें करने के लिए कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज डेवलप किया भी गया है, जिसको हम एजेक्स बोलते हैं. बट अगेन दैट इज बेस्ड ऑन योर जावास्क्रिप्ट. सो ये जावास्क्रिप्ट वर्क्स ऑन फ्रेमवर्क. अभी जावास्क्रिप्ट के ऊपर अगर हम आएंगे, तो अगर आप देख पाओगे तो जावास्क्रिप्ट का एक ही स्ट्रक्चर होता है, दिस वे. नाउ जिस तरह से स्टाइल हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को दे सकते हैं ना, उस तरह से हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को भी पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट असाइन कर सकते हैं. तो जावास्क्रिप्ट इवेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज हम इसे कह सकते हैं. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इवेंट? Sir, that is our mouse and keyboard events, like on click, on scroll. Okay. On submit. Okay. On submit. On Okay, click. ठीक है, देखते हैं. Correct. So there are some event. One is on click. जब भी कोई बटन हम क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर हम किसी पर्टिकुलर थिंग को पे कर सकते हैं जो इस पेज के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है. फिर सेकंड है ऑन इनपुट. देन थर्ड है ऑन चेंज. हम एक एक के ऊपर आएंगे. उसके बाद में है ऑन लोड. ठीक है. सबसे पहले लेते हैं ऑन क्लिक. फ्रॉम वेरी सिंपल. सबसे पहले तो ऑन लोड पे एक स्पेसिफिक हम यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं कि ये पूरा डॉक्यूमेंट जब लोड हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, जो डेमो नाम का एक आईडी का स्पेसिफिक जो ये P है, पैराग्राफ है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक टेक्स्ट आएगा. जो टेक्स्ट यहाँ पे है हेलो जावास्क्रिप्ट. ठीक है. So I'll just run this page.
Okay, can you see this? Okay, अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया था यहाँ पे कि एक ऑन क्लिक इवेंट दिया जो इस पर्टिकुलर बटन को दे दिया, और ये बटन ये पर्टिकुलर ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म करेगा जहां पे उसी डेमो नाम के आईडी के अंदर जो उसका इनर HTML है वो चेंज होके डेट हो जाएगा, आज का जो डेट है वो। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाई इनर HTML? हम यहाँ पे वैल्यू भी तो लिख सकते हैं। I'll tell you. वैल्यू उसी चीजों के लिए हम लिख सकते हैं जो इनपुट के अंदर आते हैं, जहां पे हम यूजर से कुछ तो परफॉर्मेंस या तो कुछ तो टेक्स्ट हम ले रहे हैं, उसके लिए हम वैल्यू या डॉट टेक्स्ट ये दो चीजें ले सकते हैं। बट व्हेन इट इज ए एलिमेंट वी नीड टू टेक इनर HTML और आउटर HTML, या तो इसके अंदर जो भी HTML होगा वो हमें लेना होगा, या तो उसके बाहर का जो HTML हमें लेना है तो वो हम ले सकते हैं। सर जावास्क्रिप्ट कोड को मैनिपुलेट करता है, इसलिए हम इनर HTML जो है फीचर उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जब वहाँ पे रिफ्रेश होगा सर्वर साइड पर। क्या क्या? इनर HTML करेक्ट, ये मैनिपुलेट करता है इसीलिए क्योंकि कुछ ऑपरेशंस, जैसे अगर मुझे सिंपल एडिशन करना है 1+1, इतने छोटे से ऑपरेशन के लिए मैं हर बार पेज रिफ्रेश नहीं करूंगा, और ये पर्टिकुलर ऑपरेशन जानने के लिए सर्वर को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आई मीन कोई सामने वाला क्लाइंट 1+1 कर रहा है ये जान के सर्वर साइड क्या करेगा? दैट्स व्हाई वी यूज जावास्क्रिप्ट। अभी जावास्क्रिप्ट इसको हम वैनिला JS बोलते हैं, वैनिला जावास्क्रिप्ट, जो सिंपल जावास्क्रिप्ट है जो इस तरह से काम करता है। कैन यू टेल मी इसके ऊपर कुछ लाइब्रेरीज डेवलप हुई एज टाइम आगे चलता गया, तो ये सारी चीजें करने के लिए मुझे अगर टाइम नहीं है इतना मैं टाइप करूं और ये सारी चीजें, तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म कर ले, इसलिए कुछ लाइब्रेरीज यूज की। कोई उनके नाम बता सकता है? One of the most jQuery. popular and used libraries. Okay, React.js. jQuery, correct. React.js. Who developed React.js? So Facebook developed React.js for themselves in 2013. So अगर आपने पुराने मोबाइल्स में अगर फेसबुक यूज किया होगा तो आपको एक बेसिक प्रॉब्लम ध्यान में आया होगा कि वो बहुत ज्यादा कैश क्रिएट करता था या बहुत ज्यादा डेटा आपका कंज्यूम करता था आपके मोबाइल के अंदर। मैंने तो 300-350 MB तक का डेटा देखा है कंज्यूम करते हुए फेसबुक को ऑन मोबाइल। बट एज बीइंग जावास्क्रिप्ट अ वेरी स्मॉल फुटप्रिंट लैंग्वेज, वो बहुत छोटा सा चीजें पीछे छोड़ता है और उसको जो साइज है वो भी कम लगता है, इसलिए वो एम्बेड करके ये सारी चीजें करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बनाया गया जिसको हम कहते हैं React.js। नाउ जब एंड्रॉइड के अंदर मोबाइल बनते थे, जैसे ट्रेडिशनल बनते आ रहे हैं, वो एक लैंग्वेज के बनते थे, वो जावा। ऑब्वियसली एवरीवन इज लाइक समहाउ फैमिलियर विद जावा, कुछ ना कुछ जावा के बारे में तो पता होगा। बट जावा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता था कि जावा सबके लिए नहीं था, जावा अलग से सीखना पड़ता था। सो React.js का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि उसका बेस HTML है, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी यूज करके हम नेटिव एप्लीकेशंस बना सकते हैं। नेटिव इज व्हाटएवर यू कैन रन इट इन योर मोबाइल। सो फेसबुक इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ नेटिव एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, दैट इज React.js। सो बेसिकली वो आगे का बहुत वास्ट पार्ट है, बट बहुत सारी चीजें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कर सकते हैं। जैसे ये पहला वाला हम देखते हैं ऑन क्लिक इवेंट। मैंने क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, तो ये जो हेलो जावास्क्रिप्ट है ये चेंज होके मुझे यहाँ पे इसने डेट दिखाना चाहिए। ओके,
अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के ऊपर। कोई बता सकता है फंक्शंस के बारे में? There are two types function, user defined Okay. function and predefined functions. Predefined functions. Okay. And what are user defined functions? जिसको यूजर बनाते हैं वो यूजर। Sir, They are user made defined by the function are That is those the functions. literal translation of English sentence. I mean, Sir, Sir, वो किस तरह से sir, यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? we can develop the function to use the multiple operation of the single function. ओके, सो मैं एक फंक्शन लिखता तो- हूं यहाँ पे। अगर मुझे यही फंक्शन ऑन क्लिक के ऊपर परफॉर्म करना है, दिस ऑन क्लिक, मुझे ये सेम चीज करना है लेकिन फंक्शन का यूज करके, तो मैं किस तरह से करूंगा? What I'll फंक्शन do, I'll just create function one का particular नाम। function with demo only. ओके, इसको ब्रैकेट्स में डालते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम ये फंक्शन लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट, जो भी आपका इनर HTML है, इसको मुझे डेट दिखाना है। So I'll just cut it and paste it here. Now मुझे ये फंक्शन कॉल करना है इस बटन क्लिक के ऊपर। What I'll do? सर कॉल कर देंगे वहाँ पे। सर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। How? In curly brackets. Okay. डेमो And Bracket. ब्रैकेट्स सेमी सर्कुलर ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है इस पर्टिकुलर HTML के अंदर ना, मुझे एक स्पेसिफिक x नाम का एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल है वो प्रिंट करवाना है, और जो x है वो मैं यहां से लूंगा। अब मुझे इस बटन क्लिक के ऊपर दिखाना है कि ये x की वैल्यू क्या है। We तो need मैं to किस तरह pass से करूंगा? x अगर inside मुझे the यहाँ पे brackets. p के अंदर प्रिंट करवाना है मेरा नाम अद्वैत, तो मैं किस तरह से करूंगा? सर एक्स को वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। इस तरह से मुझे यहाँ पे असाइन नहीं करना है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मुझे इस बटन को वैल्यू असाइन करना है। सर उस फंक्शन को इवेंट पास करना पड़ेगा। वो तो कर रहे हैं ना, ऑन क्लिक इज इवेंट ओनली। What I'll do, I'll write string here. So ये string consider होगी as one particular variable, जो variable यहाँ पे ये print करेगा। Got it? Now what we'll do, we'll just perform on input operation. ऑन इनपुट है तो ऑब्वियसली वो इनपुट पर देना पड़ेगा मुझे। सो मैं ऑन इनपुट ऑपरेशन डालता हूं यहाँ पे, और मैं ये जो चीज है इसे वापस एक बार परफॉर्म करूंगा। ओके, अब जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे कुछ करूंगा टाइप, तो ये यहाँ पे ये होगा, ये हो गया ऑन इनपुट। अभी इसी के लिए और एक चीज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑन चेंज। अभी कोई बता सकता है ऑन इनपुट और ऑन चेंज में फर्क क्या है?
लॉजिकली फर्क इतना ही है कि ऑन इनपुट मतलब आप जब टाइप करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली एवरी की के प्रेस पे वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होता जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे करते जा रहे हैं। अब अगर मैं इसको ऑन चेंज कर देता हूं तो जब तक मैं ये इनपुट छोड़ूंगा नहीं, मतलब यहाँ पे पूरा टाइप होने के बाद मैं दूसरा कुछ क्लिक नहीं करूंगा, तब तक वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। लेट्स सी कैसे। देखो पहले वहां पे अगर मैं टाइप करता हूं तो आता था, अभी ऑन चेंज ही वो, इस पर एक जो भी चेंज हुआ उसके बाद में ये स्पेसिफिक चीज आ रहा है। अभी ये क्लिक हो रहा है इसलिए रेडेंट। अब ये क्लिक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बटन के अंदर हमने दिया है, इफ यू कैन सी। अब अगर मैं इस पर टाइप करता हूं तो कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर मैं ये पर्टिकुलर एलिमेंट को निकाल के कहीं और क्लिक करता हूं तो हाई दे रहा है। अभी अगर मैं ऑन इनपुट करता हूं इसे, तो सेम वे मैं जो भी टाइप करता जाऊंगा, जैसे मैं कुछ पहला लेटर टाइप करता हूं तभी ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और हर इस पर वो परफॉर्म होता ही जा रहा है, बट वो आपको दिखाएगा नहीं क्योंकि वो एक सिंगल टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं ऑनलोड फंक्शन पे, ऑनलोड इवेंट। कोई बता सकता है ऑनलोड इवेंट क्या होता है? और वो कौन से एलिमेंट्स पर चलेगा? सबसे पहले वो चलेगा बॉडी टैग पे। तो जो भी ऑनलोड इवेंट है वो हम बॉडी टैग पे क्लिक करेंगे। अगर मुझे ये पर्टिकुलर पेज ही रीडायरेक्ट करना है तो कोई बता सकता है क्या स्ट्रिंग हम यूज करेंगे इनसाइड जावास्क्रिप्ट? मुझे ये पेज लोड होते ही किसी और पेज पर लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, लोकेशन डॉट रेफ। इफ यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग वी यूज्ड इन लिंक्स, सो मुझे ये लिंक चेंज करना है और मैं इसे लेके जाऊंगा google.com पे। सो ऑपरेशन यही परफॉर्म होगा कि जैसे ही वो बॉडी टैग तक पहुंचेगा वो आपको लेके जाएगा google.com पे। लेट्स सी, मैं इसे रिफ्रेश करता हूं। ओके, और इसको एज हमने लोकेशन रेफ यूज किया है इसलिए इसको कोई बैक हिस्ट्री भी नहीं है, इसलिए आप यहां से बैक भी नहीं जा पाओगे। अगर आप इसको चेंज करते थे तो वो अलग चीज थी, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उस लिंक के ऊपर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, दैट वे ये काम करेगा। अब यही चीज मुझे फंक्शन से अगर कॉल करनी है तो मैं वही करूंगा, मैं डेमो नाम का एक फंक्शन जो मैंने ऑलरेडी ये किया है वहां से मैं ये चीज हटा दूंगा और यहाँ पे डालूंगा कि जैसे ही कहीं से भी ये डेमो फंक्शन अगर यूज होता है तो मैं किसी और पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, गॉट इट। फिर मैं यहां से वो जो ऑनलोड फंक्शन था बॉडी का वो मैं निकाल देता हूं। अब ऑपरेशन कुछ इस तरह से परफॉर्म होना चाहिए इस चीज के ऊपर कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूं या जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो वो किसी और पेज पर मुझे लेकर जाएगा। अब ये चीज हम डायनामिकली भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसके अंदर कुछ टाइप करता हूं और टाइप करने के बाद मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसके अंदर जो चीज होगी, जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर हम उसको लेके जाएंगे जो एग्जैक्टली ये चीज परफॉर्म करता है। गॉट इट? ओके,
अभी कोई मुझे बता सकता है CDN क्या होता है? बेसिकली CDN इज अ वे कि हम किसी भी लाइब्रेरी को या परफॉर्म को, दो चीजों से हम किसी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे jQuery है स्पेसिफिक लाइब्रेरी मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर यूज करनी है, तो या तो मैं jQuery के सारे फाइल्स डाउनलोड करूंगा, मेरे यहाँ पे होस्ट करूंगा मेरे सर्वर के ऊपर, और उस पर्टिकुलर फाइल को मैं यूज करूंगा डायरेक्टली एज माय सर्वर के ऊपर। बट काफी सारी चीजें होती है, एक तो टाइम है, एक तो स्पीड है। जैसे मेरा सर्वर अगर स्लो है या तो मेरे पास उतना साइज नहीं है कि मैं वो पर्टिकुलर फाइल को सेव करके रखूं, तो CDN हमें कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करता है कि बाहर से हम उस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। जैसे ये jQuery का स्लिम कोड है, इसके अंदर जाके हम jQuery के कुछ फंक्शंस होंगे तो वो यूज कर पाएंगे। दिस वे ये काम करता है। अब VanillaJS के अंदर ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, कि VanillaJS इनबिल्ड आता है HTML5 के अंदर। सो डू यू नो दैट HTML5 के भी एप्लीकेशंस बन सकते हैं? अभी कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप होता जा रहा है कि जो HTML5 है उसी के अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनते हैं डायरेक्टली, सो दैट उसको APK के अंदर आप कन्वर्ट करके आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर यूज कर पाओगे। ये प्रिविलेज इसलिए बनाया गया क्योंकि एज मैंने पहले भी कहा था कि जो जावा लैंग्वेज है ये हर कोई सीखने में टाइम उतना छोटा नहीं है। जैसे स्क्रिप्टिंग आपका एक दिन में हो सकता है, HTML आपका एक दिन में हो सकता है, इनफैक्ट आप CSS पूरा एक दिन में पढ़ सकते हो। बट जावा जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी वास्ट, उसके फेसेस ही बहुत सारे हैं, जो पढ़ते पढ़ते बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो एक बेसिक जो आपका HTML डिजाइनर है वो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन या तो iOS एप्लीकेशन बना सके, इसलिए कुछ लाइब्रेरीज डिफाइन हुई। उनमें से एक है React.js। अभी React.js था तो जैसे हम बीच एक हेल्दी कंपटीशन होता है जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, उसी तरह से इन कंपनीज के बीच में भी एक हेल्दी कंपटीशन होता है। सो React को कंपटीशन करके गूगल ने खुद का लैंग्वेज बनाया, लैंग्वेज या फिर हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म बनाया, जिसको हम बोलते हैं फ्लटर, जो उनका एक पुराना लैंग्वेज है डार्ट, जिसके ऊपर वो बेस्ड है। और सो कोई बता सकता है जिस तरह से ये पर्टिकुलर jQuery एक लाइब्रेरी है उसी तरह से, या फिर AngularJS एक फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, उसी तरह से CSS के अंदर भी हम कुछ फ्रेमवर्क्स यूज कर सकते हैं। Bootstrap. Okay, Bootstrap is one of the most popular जो CSS का फ्रेमवर्क है। Any other framework you know? Material UI. Okay. Okay. There are so many UI, बस एक जो Bootstrap है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ इसलिए Bootstrap, और अगर Android का है तो वहां पे Material यूज किया जाता है। Material के भी दो टाइप है, वन इज Material UI, वन इज Materialize। तो दो अलग अलग कंपनीज है, लॉजिकली नथिंग एल्स, उनके अंदर वो पूरा फ्रेमवर्क लिखा गया है। नाउ अगर CSS के अंदर ये सारी चीजें हो रही है तो फ्रेमवर्क की क्या जरूरत थी, कोई बता सकता है? वेबसाइट को फास्ट और रिस्पॉन्सिव डिजाइन देने के लिए। वो तो हम CSS के अंदर भी दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिव तो मैं CSS के अंदर भी कर सकता हूँ कि मैं स्क्रीन की साइज डिफाइन करूँ, उसके बाद में मैं अगर नीचे उसका कुछ लिखता हूँ तो वो मैं कर ही पाऊंगा। But that is time consuming like thing. So if we use framework, so we can save our time. Correct. So when we use any kind of जो लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क जब हम यूज करते हैं CSS का, तो उसका एक रीजन ये भी है कि हम जब टाइप करते जाते हैं तो हमें बेसिकली इन सारी चीजों की चिंता नहीं करनी होती कि पेज का साइज क्या रहेगा, फिर वो छोटे पेज पर किस तरह से दिखेगा। उनके खुद के कुछ फंक्शंस है, जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर मैं एक पर्टिकुलर कॉलम बनाना है, ये मुझे कॉलम के अंदर चाहिए तो मैं इस तरह से दे सकता हूं। वही अगर मुझे ये लार्ज जो स्क्रीन है उसके ऊपर सिर्फ ये दो पर्टिकुलर इसके अंदर चाहिए, तो ये किस तरह से काम करेगा कि ये H2 एक हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा और दूसरे हाफ पार्ट के अंदर एक दूसरा कॉलम आ जाएगा। सेम वे जब साइज छोटा होता जाएगा
उस हिसाब से वो एडजस्ट करेगा और उसको 12 कर देगा, मतलब पूरा जो विड्थ है आपका वो 100% करेगा। सो एक बेसिक CSS का अगर आप एग्जांपल लेंगे, बेसिक CSS के लेआउट का, तो वो कुछ इस तरह से काम करता है। एक CSS का टेम्पलेट है जो बेसिक इनलाइन CSS के ऊपर बिल्ड करके बनाया हुआ है। आई शो यू। दिख रहा है स्क्रीन? तो इसके अंदर ये हेडर है, ये फुटर है, ये बेसिक बॉडी है, इसके अंदर ये लेफ्ट साइड में है जो ये हमने लिस्ट बनाया है जो हम एज अ मेनू यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें करने के लिए मुझे कम से कम 10 से 12 लाइन का तो CSS लिखना पड़ा। पर यही चीज जब मुझे बूटस्ट्रैप के अंदर या मटेरियलाइज के अंदर आना है तो 4 लाइन से बड़ा कोड नहीं होगा ये। पहली बात तो मुझे CSS अलग से लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एंड सेकंड थिंग इज हम ये जो सारी चीजें हैं हेडर और फुटर की, ये डायरेक्टली क्लास के हिसाब से काम कर पाएगी। सो बूटस्ट्रैप किया है, पहले स्टडी हुआ है बूटस्ट्रैप का? नहीं। बूटस्ट्रैप भी CDN के ऊपर से ही काम करता है। ओके, ये अलग अलग मतलब बैचेस के है क्या? कुछ किया है कुछ नहीं, या तो फिर व्हाट इज द एजुकेशन, क्या एग्जैक्टली ये है? सर एक्चुअली क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तो कुछ स्टूडेंट ने हो सकता है सेल्फ स्टडी किया हो सकता है इन्होंने अलग से स्टडी करके रखा हो, किसने ये नहीं किया हो, तो हो सकता है मिक्सअप है। ओके, सो विल गो टू बूटस्ट्रैप देन। सो बेसिकली बूटस्ट्रैप का भी 4th वर्जन चल रहा है, तो आई यूज CDN। अभी बूटस्ट्रैप को पूरा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सीधा एक CDN के अंदर इसको इस तरह से ले लूंगा। सर बूटस्ट्रैप 5 पर भी आ गया है सर। बूटस्ट्रैप 5 इज द लेटेस्ट वन जो अभी, बट जनरली ऐसा कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कि नेवर गो फॉर लेटेस्ट अंटिल अनलेस इट इज स्टेबल। सो अगर आप बूटस्ट्रैप 5 पे काम करने लगोगे और उसके अंदर कुछ छोटा मोटा भी प्रॉब्लम आता है, और अगर आप फॉरम्स के लिए सर्च करोगे गूगल के ऊपर, तो आपको उतने फॉरम्स नहीं मिलेंगे जो आपको पुराने वर्जन्स के लिए मिलेंगे। That's why usually use at least one version earlier. जैसे अभी PHP का 8th वर्जन चल रहा है जो सर्वर लैंग्वेज, but still developers use 7.4, most of the developers. Okay sir, got it. I'll do. इसको हेड के अंदर हम डाल देते हैं। Now लोग कुछ इस तरह से भी यूज करते हैं। दिस इज वेरी बैड एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग। यू नेवर यूज टैग्स इन ब्लॉक लेटर्स। Then we'll take ओके, एज मैंने CDN ले लिया है तो पूरा का पूरा स्टाइल शीट मेरे यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। आई विल डिजाइन अ बॉडी। फिर मैं एक डिवीजन लेता हूं। अभी अगर मुझे इस पर्टिकुलर डिव को, मतलब ये एक एज अ रो यूज करना है, और इसके अंदर के जो 2 डिव है उनको अगर मुझे कॉलम्स में दिखाना है, तो मुझे नॉर्मल CSS के अंदर क्या करना पड़ेगा? मैं एक और डिव बनाऊंगा, स्टाइल दूंगा,
और इसका विड्थ दूंगा दैट इज 50%, करेक्ट। सेम वे यहाँ पे दूसरा करूंगा। नाउ मैं दोनों को कलर अलग अलग देता हूं तो हमें वो समझ में आएगा। इसको ग्रीन देता हूं, इससे ब्लू देता है। इसके अंदर कुछ ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये करने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा, फिर भी ये एक पर्टिकुलर रो के अंदर नहीं आया, ये कॉलम उसके नीचे आ रहा है, मतलब ये 50% में इसके नीचे कवर होता है। उसके लिए भी हमें एक स्पेसिफिक रो को डिजाइन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें टालने के लिए we can do it in bootstrap so that हम इस पर्टिकुलर div को एक क्लास देंगे जो है रो। अभी बूटस्ट्रैप का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि वर्जन कंट्रोल पे भी काम करता है, कि जो 3 वर्जन है उसमें से सारी चीजें तो 4 में आएंगी, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी रहेंगी, कुछ डेप्रिसिएट होती है लेकिन वो पता चल जाती है। सो कोई अगर बूटस्ट्रैप पे काम कर रहा है तो पर्टिकुलर काम करते वक्त उसे वो पर्टिकुलर चीज के लिए रुकना ना पड़े, इसके लिए ये फैसिलिटी दिया गया है। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट मेक क्लास के अंदर मैं एक कॉलम दूंगा जिसको मैं 6। नाउ व्हाट इज 6? तो ईच पर्टिकुलर दिस ब्लॉक वी कॉल इट अ ग्रिड। ये ग्रिड आपके पूरे स्क्रीन को 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो मुझे ये 6 पार्ट्स में ये पर्टिकुलर डिव दिखाना है और 6 पार्ट्स में दूसरा डिव दिखाना है। ओके, और इसको मुझे स्टाइल देना पड़ेगा टू नो। अब ये बैकग्राउंड ओके, पहले नॉर्मल सीएसएस के अंदर दिखाता हूं। ग्रीन, लुक एक रो के अंदर 2 कॉलम आ गए। इनको मैं साइज दे सकता हूँ, इनकी हाइट में उसी के अंदर से डिफाइन कर सकता हूँ। अभी फिर भी ये जो बैकग्राउंड है ये चीज मैंने हार्ड कोड किया है स्टाइल के साथ में। एक्चुअल उसके लिए भी अलग कोड है। जैसे मैं ये अगर निकाल देता हूं और यहाँ पे बीजी ग्रीन करता हूं, बीजी मतलब बैकग्राउंड, वही मैं यहां से निकाल के इसको बीजी ब्लू करता हूं, तो वो उस हिसाब से काम करने लगेगा। ओके, ये 4 है। नाउ 5th एंड 3rd का ये भी एक डिफरेंस है। ये छोटे मोटी चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती है ईच वर्जन के अंदर, तो थोड़ी बहुत चेंज होती जाएगी। सो इसका ऑब्वियसली बैकग्राउंड के लिए कुछ और फंक्शन होगा, दैट वे ये काम करता है। ठीक है, अगर हम इसको टेक्स्ट अलग से देते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट ग्रे है या तो टेक्स्ट ब्लैक है, तो एक का टेक्स्ट अभी ग्रे रहेगा, उसके अंदर जो भी चीजें आएगी उन सब का यहाँ पे बुटस्ट्रैप आई गेस क्रेडिट रिमूव आनी है।
तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं इनसाइड बूटस्ट्रैप। इवन जस्ट बूटस्ट्रैप के लिए तो बहुत उनका खुद का डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज रियली नाइस। ऐसे कुछ अलग से करने की उसके लिए जरूरत नहीं है। सो ये लाइब्रेरीज उन लोगों के लिए बहुत काम आती है जो लॉजिकली सिर्फ डेवलपर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली पीपल इन दिस इंडस्ट्री, वन आर डिजाइनर, वन आर डेवलपर्स। सो सारे डेवलपर्स डिजाइनर होंगे ही ऐसा नहीं है, कुछ सर्वर साइड खाली डेवलपर भी होते हैं कि मैं कुछ ऑपरेशंस खाली बनाऊं जो मेरे लिए काम करे। बट वो ये जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर जो भी मैं करूंगा वो मुझे डिजाइनिंग के अंदर आना ही चाहिए। तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है कि मैं सीएसएस अपना अलग से डिजाइन नहीं करूं, इनका जो ऑलरेडी डिजाइन सीएसएस है उसके ऊपर मैं काम करूंगा, तो वो मेरे लिए इजी जाता है दैट वे। ओके, Sejal, you want to say something? No. Okay, I read that now. Okay. Those 12/7, not a problem. Any questions regarding this or the previous part? Hello students, anyone have any question? Whatever doubts you have, please ask. Let's start with one by one. Any questions on HTML, basic HTML? I don't think so. वो तो सबका पक्का है, बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे। Okay, anything on CSS? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने 5 वीक की लर्निंग, थ्योरेटिकल लर्निंग कंप्लीट कर ली है इन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर, राइट? सो दिस इज द टाइम आप यहाँ पे सर से अपने क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो आपको टिप्स चाहिए हैं नेक्स्ट फेज में एंटर करने के लिए, लाइक क्योंकि आपका अभी नेक्स्ट फेज जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। तो उसमें क्वेश्चंस ना होने के 2 डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। एक तो सब कुछ समझ में आ गया, आई मीन वो रहे तो ठीक है, अगर दूसरा रीजन है तो वैसा भी बताओ। हाँ, आप अपना जो भी डाउट है क्लियरिफिकेशन आप कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है, आपने अभी जो भी समझा है, इसके अलावा भी आपको जो कुछ पूछना है, आपकी जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में आपको हेल्प करे, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hello. In which days we can learn complete Bootstrap? Yes. In how many days you meant to ask? ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं। अगर आपका एक ग्रास्पिंग अच्छा है तो आप सुबह बैठो तो शाम तक हो जाएगा, दैट वे। एंड इन प्रोग्रामिंग का तो भी मैं एटलीस्ट एक चीज बता सकता हूँ। मृणाली का क्वेश्चन है ये, सॉरी, शी sent a direct message, so I'm just reading this message that in how many days we can learn complete Bootstrap? तो Bootstrap लर्न करने के लिए एक दिन भी बहुत है, अगर आपका CSS का बेस थोड़ा बहुत पक्का हो तो। एक चीज। एंड सेकंड चीज ये है कि कोई भी प्रोग्रामिंग, जैसे मार्कअप लैंग्वेज हो गया, या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो या CSS हो, ये आपके एक्सपीरियंस से ही आपको आता जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार पढ़ लिया और आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी बीइंग इन इंडस्ट्री आफ्टर 13 years आई लर्न मेनी न्यू थिंग्स, ऑब्वियसली नॉट इन मार्कअप लैंग्वेजेस, बट जब डेवलपमेंट की बात आती है तो बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती है एवरीडे। एंड अभी तो ये फ्रंट एंड के लिए, जब आप बैक एंड में जाओगे तो ये चीजें ज्यादा आपको बेसिकली काम आएगी, बिकॉज एवरी डेवलपर इज डिफरेंट। डेवलपमेंट इज एन आर्ट। जैसे आपका लॉजिक काम करेगा उस हिसाब से काम करोगे। एक ही प्रोग्राम, जैसे एक
सीधा अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जैसे 1+1 भी मुझे करना हो तो वो चीज करने के लिए मेरा लॉजिक और एक सामने वाले का लॉजिक अलग हो सकता है, एंड दैट इज कंप्लीटली नेचुरल. सो ये वेरी इंडिविजुअल थिंग है कि हाउ मेनी डेज आप यू कैन ग्रास्प इट, एंड आगे जाके आप कितना यूज करोगे उस हिसाब से आप पढ़ते जाओगे. Is it possible to work on projects if one knows only HTML, CSS and JS? Yes, yes. On static websites, I'll say, Shivanshu, because जब डायनामिक वेबसाइट्स की बात आती है तो उसके लिए आपको एक बेस होना जरूरी है, या तो सर्वर एंड होना जरूरी है. तो एटलीस्ट यू नीड टू नो बेसिक PHP if you are developing kind of dynamic websites, जहाँ से आप सामने वाले से कुछ इनपुट्स ले रहे हो या कुछ डायनामिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो. बट हाँ, अगर स्टैटिक वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होने वाले, आपको सिर्फ वो सामने वाले को दिखाना है, इट इज कंप्लीटली पॉसिबल ऑन HTML, CSS एंड JS. You can ask on mic as well. Chat में ही पूछो, ऐसा कुछ नहीं. Sir, basically we use this pure CSS or CSS based framework. So how we familiar or understand that when we shifted from pure CSS to CSS framework? Logically pure CSS is difficult than your framework. फ्रेमवर्क बनने का रीजन ही यही था कि CSS में टाइम ना जाए और वो थोड़ा इजी जाए समझने के लिए. सो जो आप क्लासेस को देते हो ना, व्हाट इज फ्रेमवर्क, व्हाट दे डिड, एक स्पेसिफिक CSS बना के रखा जिसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस उन्होंने डिफाइन करके रखे एक CSS के अंदर, सो दैट फॉर ईच ऑपरेशन यू डोंट नीड टू क्रिएट योर ओन CSS. जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर है ना कि आपको एक रो डिफाइन करना है, सो क्लास को खाली रो नाम दे दो. अगर कॉलम डिफाइन करना है तो COL कॉलम और एक डैश देके आपको कितना ग्रिड्स के अंदर वो कॉलम को देना है उतना दे दो, तो वो काम करने लगेगा. इनफैक्ट आई सजेस्ट गो फॉर CSS. जब पूरा CSS आ जाए तो बाय डिफॉल्ट आपको बूटस्ट्रैप आने लगेगा. इट जस्ट आपको उसके वो क्लासेस थोड़े से स्टडी करने पड़ेंगे कि कौन सा क्लास कौन से चीज के लिए काम करता है. सो लेट मी बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे डेवलपर्स को बेसिक CSS भी नहीं आता है. यू आर वे अहेड फ्रॉम देम. सो ऐसा नहीं है कि आप फ्रेमवर्क कब शिफ्ट करोगे. आप अगर बेसिक CSS सीख रहे हो तो फ्रेमवर्क आपको आ ही रहा है. यू जस्ट नीड टू लर्न दोज जो क्लासेस को क्या नाम देना है, दैट्स इट. सर पहले मतलब मैं फ्रेमवर्क यूज करता था, बट समटाइम्स कॉम्प्लेक्स डिजाइन अगर आ जाता है ना सर, तो फ्रेमवर्क की कुछ लिमिटेशन होती है सर. मतलब वैसा हम नहीं कर सकते उस फ्रेमवर्क पे. When you are saying framework, is it CSS framework? I'm just curious. Yes sir, CSS. Okay, हाँ. तो उस टाइम पे हमें कस्टम CSS वगैरह लिखना पड़ता है सर, कॉम्प्लेक्स डिजाइन. yes. क्योंकि बूटस्ट्रैप एक यूनिवर्सल, या तो कोई भी फ्रेमवर्क यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे यूज करने के लिए बना है ना, वो एक स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं बना है. सो एक कस्टम फाइल फिर भी आपको बनाना पड़ेगा कुछ आपकी चीजें डिफाइन करने के लिए. जैसे बाय डिफॉल्ट आपके हेडर या फुटर का जो कलर है वो ग्रेइश आता है इन बूटस्ट्रैप. इफ यू वांट इट ब्लू तो ऑब्वियसली आपको आपका खुद का एक कस्टम CSS लिखना तो पड़ेगा. हाँ, यू कैन यूज बोथ इन, आई मीन वैसा ही यूज करते हैं, बोथ एक साथ में आप यूज कर सकते हो कि आपने बूटस्ट्रैप भी यूज कर रहे हो, बूटस्ट्रैप के साथ साथ एक आपका खुद का कस्टम CSS बना है, उस तरह से आप काम करोगे. आई गेस फ्रेमवर्क के साथ उसी तरह से काम होता है. Good afternoon, sir. Sir, I have a question. It's kind of discussed from the topic. I want to ask, like, as you mentioned earlier, when we are creating HTML, CSS, and if anybody goes on our website and click on the inspect button, then he can see the whole code, like the HTML, CSS code. So don't you think it's kind of, it's ruining the privacy policy or something like this, security policy? Like, not really, because that's on the development. Any kind of HTML, CSS and other code can be visible from the end. अभी उसके लिए कुछ चीज, हाँ, tell me, Shivan. So sir, he can copy that code and like use it for his own website, right? So yes, they can.
That's the reason they use it, the copyright button in the footer, no? क्योंकि कोड पूरी तरह से विजिबल होता है ऑन एवरी वेबसाइट. अगर वो HTML है तो पूरा का पूरा ही कोड मिल जाएगा मुझे. इनफैक्ट देयर आर सॉफ्टवेयर आई नो जो लॉजिकली आपका पूरा वेबसाइट पेज करके रख देंगे, आपको तो वो कोड कॉपी करने की भी जरूरत नहीं. So your copyright footer is very important when you are using your website. जब आप किसी को एक वेबसाइट डिलीवर करते हो तो आपको उनका एक कॉपीराइट, भले आपने कॉपीराइट किया भी नहीं हो, कॉपीराइट प्रोसेस इज वे बिगर, बट एटलीस्ट वो एक डर लगा रहता है सामने वाले को कॉपी करते वक्त कि हाँ ये कॉपीराइटेड है तो मेरे ऊपर कुछ लीगल एक्शन हो सकता है. दैट्स व्हाई दे यूज इट. अभी इसके कुछ मतलब कुछ कर सकते हैं छोटी मोटी चीजें, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कुछ ऐसा कोड कर सकते हैं हम लोग कि आपको राइट क्लिक ही डिसेबल करके रखो. ये बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर होता है टू कीप योर प्राइवेसी, बट दैट इज वेरी बहुत ऊपर ऊपर वाला सॉल्यूशन है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर वो आप करते भी है तो भी आप आपके मेनू से डेवलपर टूल्स में जाके वो चेक कर सकते हैं. सिर्फ राइट क्लिक आपको अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा. बट कोई भी बड़ी वेबसाइट हो दुनिया की, उसका कोड वैसे भी विजिबल है इनसाइड इंस्पेक्ट एलिमेंट. इट जस्ट थिंग इट वो उसको कॉम्प्लेक्स करके रखते हैं टू ट्रैक कि वो डायरेक्टली कॉपी ना कर पाए कोई. Okay, sir. Thank you. Sir, one question for that. Sir, we can just copy HTML, CSS. I think we cannot copy the logic of that behind of that code. What logic you are talking about? क्योंकि JavaScript I mean JavaScript. Why not? मैं वही बोल रहा हूँ ना. Why we usually use imported CSS and not inline CSS? Because वो एक पेज के ऊपर ही आप पूरा कोड अगर थाली की तरह सजा के सामने वाले को दे दोगे तो वो कॉपी करने के लिए भी उतना इजी है ना. When it is in different CSS, like CSS अलग से है, JavaScript आपका अलग से है, तो वो भी कॉपी हो सकता है क्योंकि उसके अंदर उसको दिख रहा है ना ये फाइल एग्जिस्ट करता है, तो उस JavaScript को भी ले सकता है या उस CSS को भी ले सकता है और उसके अंदर डाल सकता है. So, sir, in that we can copy JavaScript as well. I mean logic. Yes. लॉजिक एज इन आपका फंक्शन. देखो मेरा कहना ये है कि जब तक ये बहुत बेसिक है तब तक ये सारी चीजें पॉसिबल भी हैं. When I'm using very complex logic, मेरे प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया है उसके लिए एक बहुत बड़ा जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने डिजाइन करके रखा है. वो समझ में तो आना चाहिए किसी को कॉपी करने के लिए, बट वो दिखता है. ओके, मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट ये भी जानना चाह रहे होंगे सर कि क्या CSS और जावास्क्रिप्ट को इनक्रिप्ट करके कुछ ऐसा डाल सकते हैं कि वेबसाइट में वो. हाँ है, ऐसे कुछ मतलब चीजें हैं जहां से आप ये चीजें कर, जैसे इंटीग्रिटी करके एक स्पेसिफिक चीज है जहां पे आप आपके कोड को इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं, बट इट इज वे अहेड, थोड़ा आगे का पार्ट है. सो उससे होगा ये कि वो पर्टिकुलर एनक्रिप्टेड वर्जन ही आपके यहाँ पे, तो आप अगर कोई जाके देखता है तो वो पर्टिकुलर चीज को ले नहीं सकता. अभी HTML5 वर्क्स ऑन कैश, ऑब्वियसली पहले भी कैश पे वर्क करते थे. आपका जो पुराना CSS है अगर वो आप थोड़ा सा चेंज भी कर दो और आप अगर रिफ्रेश करोगे ना पेज, तो बहुत सारी चीजें चेंज नहीं होंगी. उसका रीजन क्योंकि कैश वो सेव करके रखता है. सो ये कैश हम अगर डिसेबल करके रखें या उस कैश को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे जो कुकीज को, अभी ये सारी चीजें मैं वही बोल रहा हूँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बहुत आगे की चीजें हैं कि हम कुकीज करके उसको इंजेक्ट करके रखेंगे तो उस हिसाब से काम करेगा. बट हाँ ऑन बेसिक लेवल आई विल से कि कोई भी फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई एनक्रिप्ट करके रखता नहीं. इफ यू गो टू द वेबसाइट ऑफ एनी बिग कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी वेबसाइट आप खोल के देखोगे, राइट क्लिक करोगे तो उनके इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर उनका जो आपका स्टाइल शीट है वो आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा स्टाइल शीट आप देख पाओगे. अब बस इतनी ही चीज है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वेबसाइट बनाते वक्त हम इतना ही कंसीडर करते हैं कि index.html, फिर style.css और जावास्क्रिप्ट का जो JS फाइल है वो. ये कंपनीज उस तरह से नहीं काम करते. इनके हर चीज के लिए स्टाइल शीट का नाम अलग होता है. नंबर ऑफ स्टाइल शीट्स इंपोर्ट किए होते हैं एक सिंगल पेज के अंदर, नंबर ऑफ JS इंपोर्ट किए होते हैं. अब हर JS या हर CSS आपके लिए किस तरह से काम करेगा ये आपको पता नहीं है ना. To work further. Okay. So, any more questions, student? Question?
I think there is no more question now. It should not be like ऐसा कुछ नहीं है. If you want to ask anything else from JavaScript, anything else from this particular 3 topics, और वो आपका वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड है, you can ask in industry as well as in the programming. हेलो. हाँ सर आप रिएक्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं सर थोड़ा, क्योंकि अभी मैं रिएक्ट पर ही डेवलपमेंट कर रहा हूँ सर. Okay, great. So React is a library logically. Yogesh, you must be knowing, obviously you are working on it. So React generally Facebook ने डेवलप किया just to make it simpler. और सारी चीजें जैसे क्या है कि React एक ऐसा लाइब्रेरी है जो लॉजिकली आप कंपाइल करके 3 अलग अलग इंजन्स पर यूज कर सकते हो. वन इज योर वेब के ऊपर ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट काम करता ही है. सेकंड, एंड्रॉइड के जो ऐप के एप्लीकेशन है आप उसको कंपाइल करके डायरेक्ट कोड बना सकते हो, एपीके का फाइल बना के डायरेक्टली आप एंड्रॉइड के अंदर उसको यूज कर सकते हो. सेम वे iOS के अंदर एक्स इंजन के अंदर आप पर्टिकुलर जो फाइल है उसको एक्सपोर्ट करके यूज कर सकते हो. सो एक वेब डिजाइनर भी अगर रिएक्ट थोड़ा बहुत सीखता है, रिएक्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू गो फॉर इट इवन इन नेटिव. सो जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक नॉलेज होना भी बहुत है रिएक्ट के लिए. सो जावास्क्रिप्ट के बाद में अगर आप रिएक्ट के लिए जाते हो तो ये सब करने के बाद में खाली वेब डिजाइनिंग नहीं, आप ये सारी 2-3 चीजों के अंदर भी उतर सकते हो. प्लस रिएक्ट जेएस यूज करने के खुद के भी बहुत सारे पर्क्स हैं. जैसे एज योगेश इज सेइंग, इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, ही मस्ट बी नोइंग दैट कि बड़े बड़े फंक्शंस करने के लिए बहुत छोटा सा कोड करने के बाद में भी वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है. दैट वे ये काम करता है. सो फॉर नाउ आई गेस ऑन जावास्क्रिप्ट बेस मैं इतना ही बोलूंगा रिएक्ट के लिए. आगे जाके आप रिएक्ट के लिए और कुछ करना है तो आप कर सकते हो. अभी रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी. अनदर वन, दे डेवलप 2 different frameworks for this particular thing. One is Vue.js and another one is AngularJS. So Angular तो ऐसा है कि Angular you can use to develop offline standalone applications as well for your computer. बड़ी से बड़ी चीज आप. But again ये सारी चीजें जैसे आपका React भी हो गया है या तो आपका जो Angular भी Vue, they are front end languages. Inside native you can use React, बट बेसिकली अगर फ्रंट पे आप सोचेंगे तो ये सारी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस है. इनके लिए आपको एक बैकएंड होना जरूरी है. तो बैकएंड क्या क्या है, जैसे आपका डेटाबेस एक बैकएंड हो गया और एक सर्वर साइड लैंग्वेज. रिएक्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि आप सर्वर साइड लैंग्वेज यूज करो क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चरिंग है दैट इज ब्यूटीफुली रिटन. सो आप डायरेक्टली उसको MongoDB या MySQL को कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक PHP का कोड लगेगा. तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं उसके अंदर. I guess this is it. Yogesh, you already developing in React? Well, learning in React, or you're just working in React? Sir, just I'm working on the React and also working for internship. Great, yeah. Go for Angular as well. You'll find it easier when you're already familiar with React. Sir, I'm basically planning to connect like next step is Redux or React Native, because when we master the web application, so after that we also need to develop the Android application. So sir, basically my question is, so we go for Android application or iOS application, so which one option is next in after the React? So we prefer the React Native or go for the Java and Flutter? No. Anyway, React Native or Node.js in these days. If you ask me this question, like ये सवाल अगर कुछ 3-4 साल पहले भी आपने पूछा होता या 4 साल पहले भी मुझे पूछा हुआ तो मैं जावा ही बताता. But React and Node is quite matured engines now, so you can use it. Which for backend framework is good, Flash or Django? Django is a Python framework. Sudhakar. So basically, if you are interested in Python, you can go for anything like Django or plain Python.
Flash as in Flash framework you are using, or Flash this particular technology? Flash is a technology as well. हेलो सर. Yes, Harsh. सर फ्रंट एंड और बैक एंड का सर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब अब हम जब एप्लीकेशन डेवलप करते थे तो उसके लिए सर अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है सपोज रिएक्ट जेएस में, तो उसको थोड़ा बहुत बैक एंड आना जरूरी, लाइक जेएसएन स्ट्रक्चर एंड एपीआई कॉलिंग. बहुत बेस. व्हाट आई विल सजेस्ट हर्ष, पीएचपी बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं, क्लियरली. इफ यू गो फॉर इट ना, बहुत बेसिक सीखने के लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो थ्रू एजेक्स बेसिकली मेरा कहना ये है कि डोंट वेट, लाइक डोंट stick on the JavaScript only. Go for like jQuery or something जो आपको एक स्पेसिफिक चीज देते हैं जो है Ajax. So Ajax थ्रू आप डायरेक्टली PHP पेज को कनेक्ट कर सकते हो, और जो फॉर्म आपका यहाँ पे फिल हो रहा है वो Ajax थ्रू डायरेक्टली आपके डेटाबेस के अंदर सेव करेगा. सो बेसिक क्रड भी अगर उसके अंदर आ गया तो भी आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है. बिकॉज यूजुअली सर्वर साइड लैंग्वेज या तो बैकएंड यूज करने का पर्पज ही वो है कि जो सामने तो नहीं दिखाना लेकिन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए. सो हाँ, कि आपको एक बैकएंड लैंग्वेज थोड़ा बहुत आना जरूरी है, until and unless it's React or Angular. That's what I'm saying. They are very matured frameworks. तो उनको एक बैकएंड की भी जरूरत नहीं है. आप अगर MongoDB जैसे कुछ डेटाबेसेस यूज करते हो तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं उससे, इवन Firebase. बट अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, नॉर्मल jQuery और सिंपल HTML CSS में भी करना चाहते हो तो Ajax तो आप कर पाओगे सिंपल PHP कोड के साथ में. Got it, sir. How to send email directly with HTML without using device mailbox. Device mailbox. उसके लिए SMTP लगेगा आपको. ऐसे तो आप अगर सर्वर पे डाल के डायरेक्ट मेल फंक्शन यूज करते हो, HTML का तो मेल फंक्शन नहीं है मेरे ख्याल से. We use it in PHP, so at least उसको कुछ सर्वर साइड ग्रीन लगेगा आपको. बट हाँ, ये फंक्शन बहुत सिंपल है, मेल फंक्शन करके है उसका छोटा सा, जिसके अंदर से आप मेल कर पाओगे. या तो ये जो सारी लैंग्वेजेस है जैसे पाइथन हो गया, या तो रिएक्ट हो गया, या तो इवन PHP हो गया, इनका मेलर का अलग अलग उनके खुद के लाइब्रेरीज है जो गिटहब के आपको इजीली मिल जाएंगे अवेलेबल. वो छोटा सा कोड यूज करके, वो फंक्शन यूज करके आप इजीली सेंड कर पाओगे उस चीज को. Okay, Flask framework. Yeah, both are basically Python framework, Sudhakar. So if you're working on Python, so Python की बहुत सारे वैसे, जैसे PHP ये सिर्फ वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है. Python is not just वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज. उसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे सर्वर मैनेजमेंट से लेकर सर्वर डिबगिंग से लेकर आपका ऑफलाइन जो सॉफ्टवेयर है उससे लेकर सारी चीजें उसके अंदर कर सकते हो. आई वुड प्रिफर Django और Flask because I love it, but ऐसा कोई रीजन नहीं है उसमें दोनों में कंपेयर करने का. Both are really good on their own. ये so कोई और अगर चाहता है Flask उसको तो वो Flask भी यूज करे. Django, both are really good. But मैं generally when it comes to any server side language तो मैं generally frameworks नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि frameworks जो इन सारी सर्वर लैंग्वेजेस के वो बहुत ज्यादा स्पेस खाते हैं, आपका बहुत ज्यादा स्पीड स्लो करते हैं. सो अनटिल एंड अनलेस वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. फ्रेमवर्क यूज करने का एक और रीजन भी है कि आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है. तो अगर आपको टाइम का कोई मतलब ऐसा लिमिट नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में भी आप जा सकते हो. जैसे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाना तो है, वो बहुत इंटेलिजेंट एप्लीकेशन बनने वाला है, लेकिन मुझे टाइम का कोई ये नहीं है, मैं 3 महीने 4 महीने में भी दे सकता हूँ एप्लीकेशन. देन आई विल ऑलवेज सजेस्ट फॉर सर्वर साइड लैंग्वेज दैट गो फॉर कोर, जिसे हम वैनिला वे कहते हैं. उससे आपके जो इंटरनल जो चीजें हैं वो भी डिजाइन डेवलप होती है, आपको आपका खुद का भी ग्रोथ पता चलता है. एक चीज. सेकंड चीज, उसके अंदर आपको सारी चीजें पता होती है इंटरनली कि क्या करना है. इन फ्रेमवर्क ने ही डिजाइन की हुई सारी चीजें जो मैं पढ़ता जाता हूँ, तो वो मुझे यूज करने में उतना नॉलेज नहीं मिलता है. इसलिए आपको Django, Flask या फिर आपके अगर PHP में देखोगे तो Laravel है, फिर कोडिग्नेटर है, ये सारी चीजों के बहुत सारे डेवलपर्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर आप उनको इंटरनल कुछ PHP के सवाल पूछोगे ना, बेसिक क्वेश्चंस भी उनको नहीं पता है.
बिकॉज ये सारी फ्रेमवर्क्स आपको रेडीमेड कुछ ना कुछ हाथ में ला के दे देते हैं. सो फर्स्ट आई विल ऑलवेज सजेस्ट फॉर एनी लैंग्वेज जस्ट गो फॉर कोर फर्स्ट. उसके बाद में आप हट के ये सारे फ्रेमवर्क्स के बारे में सोचो. Anything else? मुझे मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें सर. I think सर म्यूट पे हो. Hello. बोलिए. Okay, shall we conclude? Someone was adding something, so I'm just curious. राहुल सर आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा राहुल से बोलिए. Technical issue maybe. Okay, sir. I think there's no more questions. No. Okay. We should end this class. So, students. Okay, thank you very much. The version of this webinar will be available. Thanks, Hitesh. Thanks, Manisha ji. Thank you very much for your valuable time for our students. Thank you students for being with us. ये आज इनफैक्ट नंबर हमारा ऑलमोस्ट 100 होता है. So effectively ना. Thank you so much. But reason is कि there are some placements at some colleges and some university exams, so it was like only half of the actual number in the master. So I hope कि you found our students pretty much up to really the point. Like they are like thirsty to seek knowledge. That's really good thing, Hitesh. Okay. We'll keep inviting you for the other master classes also in those particular topics in near future. We'll seek your help whenever needed. Yeah. For sure. Thank you very much. Thank you, Advait ji. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, students. Everyone. Thank you, Hitesh ji. Thank you, Rahul sir. Thanks all. Bye. Bye bye. Rahul, please end the meeting.